Last time we were discussing about cut sets. Okay. Right now you can actually switch off your cameras. It is not required at all. तो अभी के लिए आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं. जब आपसे कहा जाए तब आप ऑन कर लीजिएगा. शुभी अग्रवाल VIT, योर कैमरा कैन बी टर्न्ड ऑफ. Okay, thank you so much. So we were discussing about cut set और हमने कहा cut set is set, not set. It is actually a minimal set of edges whose removal from a graph increase the component by 1. ठीक है, you have done that. The thing which is to be noted in mind that it is a minimal set. यानी कि अगर आप कह रहे हैं this is set of edges, let's say कोई edges हैं, कोई भी edges of any tree, of any graph 1 2 3 4, let's say I am saying that this is a cut set. I'm saying that this is a cut set, and now I am having S2 which is a subset of S1. Then in any circumstances S2 cannot be a cut set. If S2 is a cut set, then S1 was not a cut set. So इस S1 का कोई भी subset should not be a cut set. That is to be kept in mind, which is the definition of minimal. Fine. Okay, so now we will try to understand the concept of directed loops and directed cut sets. ये direction आ जाए जिसमें, यानी you have graph in which there is no direction in the edges, and you have a graph in which each and every edge is defined by a unique direction, and you have such a graph. तो उसमें दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है. The first one is on directed loops, and the second one is on directed cut sets. The first one is directed loops and the second one is directed cut sets. तो एक फ्रेश पेपर ले लीजिए और वहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उसे साथ में बना लीजिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस डायग्राम सेवरल टाइम्स नाउ. So I'm going to make a diagram. Please make that along with me. So this is a graph having 5 vertices. Now you see I am not using the word nodes. I am saying 5 vertices and these many branches. So this is vertex 1, vertex 2, this is vertex 3, vertex 4, and this is vertex 5. Fine. We have all these and these are all connected. So there is a branch, this is another branch, this is another branch, this is another branch, this is another branch. Okay, so यहाँ पे एक और edge है, then we have an edge like this, और एक edge जो है वो ऐसी है. अभी this graph is not directional, this is just a graph, it is not a digraph. Okay, this is not a digraph. अब इसको digraph बनाते हैं. तो पहले तो हम नाम देते हैं edges को. This is 1, this is 2, this is 3, I think this is 4, and this one is 5. ये वाली is 5. ये जो है वो 7वीं है. This one यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 2 4 is 7th और ये 8th है. ठीक है, और इन सबके अभी डायरेक्शंस नहीं स्पेसिफाई किए हैं. लेट मी स्पेसिफाई डायरेक्शन एज वेल. सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर एज 1, दिस इज द डायरेक्शन फॉर एज 2, दिस इज द डायरेक्शन फॉर एज 7, एज 3 का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज फॉर एज 5, एज 6, एज 4 एंड एज 8. हैव यू ड्रॉन दिस? This is a directed graph which is connected. और connected का मतलब क्या होता है? Between any pair of nodes or any pair of vertices you have at least one path. ठीक है? I hope you have noted this down. Fine. Now
you select any loop. अब loop कैसे select करेंगे? आपसे कहा था if you are having a closed path such that you are starting from a vertex and coming back to that vertex only, one से घूमते हुए वन पर आ जाएं, we call that as a loop. आपको बताया था. So I am selecting this loop, first, second, fourth, fifth, first. तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने इसको अलग से एक पेपर पे बना लिया है, एंड आई एम यूजिंग इन रेफरेंस टू दिस डायग्राम ओनली. whatever I am saying in reference to this diagram only. ठीक है? So let me just make it. This is first, this is second, fourth और fifth. और हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो हैं फर्स्ट, सेवेंथ, 4, 6. ठीक है? वी हैव रिटन दिस फॉर्म और इनके डायरेक्शंस आर लाइक दिस. ठीक है? In a loop, you know that you have to select either a clockwise or an anti-clockwise direction. So you can select any of anti-clockwise or clockwise. ठीक है? तो loop में हम ऐसे ही select करते हैं. For example, if I have selected, let's say, a clockwise direction. ठीक है? If I have selected a clockwise direction, then we will have to introduce. पहले अगर केवल direct undirected होता तो इसमें केवल लिखते 1, 7, 4, 6. But now we will have to utilize concept of signs as well. प्लस माइनस साइन आएंगे और देखिए वो साइन कैसे आएंगे. 1, 7, -4, -6. अब ये -4 -6 क्यों आए? आप देखिए डायरेक्शन of this edge and direction in which the loop is going is opposite. That's why a negative sign. Similarly, direction of edge 6 and the direction of loop is opposite. That's why a negative sign. Whereas for edge 1 and the direction of loop was following, it is in same direction. You see that clockwise and in this direction, it is positive. Similarly for 7th one, it is positive. So that's how you can, for directed loop, you can specify these edges or set of edges. तो ये एक लूप बना, तो ये edges हमने लिख दी जिससे हमें डायरेक्शन भी पता चल रहा है. Indeed, this is actually nothing but your KVL law. क्या? V1 plus V7 minus V4 minus V6 should be equals to 0. This is KVL. आपसे शुरुआत में ही कहा था कि भले ही component equation is missing in graph theory, but interconnection equation या interconnection information, भले ही component information गायब हो जाए लेकिन interconnection information, this is because of KVL and KCL is retained. Fine. एक तो ये इस लूप के लिए हुआ. एक और लूप भी हो सकता है अगर आप उसी ग्राफ में से देखें जो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बनाया है. उसमें यू हैव सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में. सो दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज थर्ड. You have another loop. It is branch 2 or edge 2. Direction is this form. Edge 7 direction is in this form, and edge 3 direction is in this form. So we have these directions, right? Now you can take any arbitrary clockwise or anti-clockwise. ये आपकी मर्जी है. So let's say यहाँ पे आपने anti-clockwise लिया. तो anti-clockwise लेने से definitely I will have something like 3, some 2, some 7. But I would see that 3 का direction is opposite to what is the direction of my loop, so negative. 2 का direction is also opposite, that's why negative. And 7 का direction is following, that's why positive. तो यहाँ से जो equation बनेगी that would be V7 minus V3 minus V2 equals to 0. Another loop. ठीक? तो जब loops की equation लिखेंगे आप directed loops की, then you will get to know what is KVL. ओके. और ये साइंस जो है उसके बारे में हम लिख सकते हैं. अबाउट द साइंस यू कैन सिंपली राइट दैट द साइन ऑफ एन एज इन अ लूप, द साइन ऑफ एन एज इन अ लूप इज पॉजिटिव if the direction
if the direction of the loop and direction of the edge are same, else it is negative. इट मतलब साइन, तो अगर फॉलो करेगा तो साइन पॉजिटिव होगा, और फॉलो नहीं करेगा इट इज ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन, तो यू विल टेक नेगेटिव। ठीक है, एंड वी कैन से दैट, इसको बोल्ड कैपिटल में लिखना चाहिए, दैट ईच डायरेक्टेड लूप, each directed loop is a KVL equation। जो भी डायरेक्टेड लूप लिखते हैं उससे हमें KVL इक्वेशन पता चलती है। ठीक है, ये हुई डायरेक्टेड लूप की बात, ये हमने मैश एनालिसिस में भी पढ़ा था। अब इससे थोड़ा सा हटके एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग, डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, विच इज ऑन डायरेक्टेड कट सेट। डायरेक्टेड कट सेट, कुणाल, यस प्लीज। सर एक बार लास्ट वाला पेज दिखा दीजिए सर, एक सेकंड के लिए बस। अच्छा, दिस वन, यस सर। देखिए जी, डन सर। okay, so these are only two of the loops which I have taken from the diagram, there can be many। आप नोट्स और ब्रांचेस गिन लीजिए और उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी मैशेस आर गोइंग टू बी देयर। सो इफ यू हैव बी ब्रांचेस या बी एजेस हैं उसमें और n वर्टिसेस हैं, तो b माइनस n प्लस वन मैशेस होंगे, ये आप जानते हैं। तो उतने तरीके के लूप्स आप डायरेक्टली बना सकते हैं वहां से। ओके, खैर, we were discussing now, our topic of discussion is going to be directed cut sets, and you know something about cut set कि कुछ ऐसी edges जिनको कि अगर हमने ग्राफ में से रिमूव कर दिया तो ग्राफ का कंपोनेंट जितना भी था p था तो p प्लस वन हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा, और 0 नहीं हो सकता है। ग्राफ में कम से कम एक कंपोनेंट तो होता ही है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम डायरेक्शन ऑफ लूप आर्बिट्ररीली डिफाइन करते हैं ना, उसी तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ कट सेट भी आर्बिट्ररीली डिफाइन करते हैं। तो कोई भी सर्किट दिया है, मान लीजिए दिस वाज योर ग्राफ, एनी ग्राफ, एनी ग्राफ, ठीक है, कोई भी ग्राफ मान लेते हैं इसे, ये हमारा ग्राफ है और डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड मतलब एवरी एज इज हैविंग अ डायरेक्शन। फाइन, तो इसको हम एक लाइन से दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब इसके दो हाफ हो गए, इतना और इतना। फाइन, तो you can arbitrarily define a direction to this edge। तो हम ये बोल सकते हैं कि the direction of this cut set is towards this side, और the direction of this cut set is towards this side। तो किसी भी सर्किट को टू पोर्शंस में, टू प्लेन्स में बांट दें और एक डायरेक्शन हमने अपनी तरफ से आर्बिट्ररीली डिफाइन कर दिया, वी कॉल दैट एज डायरेक्टेड कट सेट। वी विल सी इन अ मोमेंट कि डायरेक्टेड कट सेट में डायरेक्शंस कहां से आ गए। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वॉट एवर द लाइन्स वी वर ड्रॉइंग टू कट अ थिंग, तो जैसे हमने पिछली बार देखा था कि वी वर रिमूविंग अ फ्यू एजेस, उसके लिए हमने एक लाइन बनाई थी। तो वॉट एवर द लाइन यू आर ड्रॉइंग, दैट लाइन कैन ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन लाइक दिस, और इट कैन ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन लाइक दिस। दिस इज अ डॉटेड लाइन, आई शुड हैव मेड इट डॉटेड। ठीक है, और यू कैन चूज आर्बिट्ररली एनी वन ऑफ द डायरेक्शन, यू कैन चूज आर्बिट्ररली एनी वन ऑफ द डायरेक्शन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, वेयर वी वुड अप्लाई इट। सो व्हाट आई वुड से इज, आप दोबारा से वो सर्किट बनाइए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि उसे बना के अलग पेज पर रख लीजिए। सो आई एम आल्सो ड्राइंग इट ऑन माय पेपर, यू आल्सो ड्रॉ इट ऑन योर पेपर। ओके, okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5,
this is 6, 7, and this one is 8. और ये डायरेक्शन है, this is the direction, 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 this is the direction. ठीक है? और आपको शायद ध्यान हो, आई होप यू हैव ड्रॉन इट अगेन. अब मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि हमने इसका एक कट सेट बनाया था, ये 1 5 4 8. कुछ नाम अलग होंगे, लेकिन अगर मैं पहली ट्विग या पहली को, चौथी को, पांचवी को और आठवीं को हटा दूं एक साथ, देन आई कैन हैव अ कट सेट, क्योंकि उसको हटाने से मेरे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं. तो लेट मी से दैट आई एम चूजिंग दिस. तो एक हाफ ये और एक हाफ ये, और मेरा जो डायरेक्शन है, लेट अस से इट इज दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो आप देखें, जिन भी ब्रांचेस का या मैं कहूं जिस भी एलिमेंट का या एज का डायरेक्शन इसके साथ है, उसको आप पॉजिटिव लिखें, और जिसका ऑपोजिट है उसको आप नेगेटिव लिखें. तो 1 इज हैविंग डायरेक्शन सेम एज दिस, 5 इज हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कट सेट, 4 is having direction same as the direction of cut set, and 7 is having direction same as the direction of the cut set. So I have only 1 5 which is having opposite direction. Otherwise all are having same direction. So I can take it in this way, that my cut set is actually 1 comma minus 5 comma 4 comma 8. Okay. और यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए कि हमारा कट सेट का डायरेक्शन ये है. वहीं अगर मैं कट सेट का डायरेक्शन ऑपोजिट लेता, मान लीजिए अगर ये ना होकर मेरे कट सेट का डायरेक्शन ये होता, इट वाज दिस, तो क्या होता है यहाँ पे सेट में, क्या बदलाव आते? आई वुड हैव देन टेकन -1 5 -4 -8. तब आप देखते कि 4 8 और 1 वर ऑपोजिट टू दिस रेड डायरेक्शन, एंड 5 इज फॉलोइंग दिस. आप लोग लिखते जा रहे हैं साथ के साथ, ये समझ आ रहा है ना आपको? Let me check. Somebody in chat box has said something. Okay, so Premvarsh has said कि उनको आ रहा है. And what about others? Can I guess? Okay, so you are getting it. And it's fine. Okay, but there can be exponential number of cut sets for a graph. जरूरी नहीं है कि केवल यही एक कट सेट है, एक कट सेट ये भी हो सकता है. ठीक. लेट मी जस्ट रिमूव 2 5 and 3 ये यहाँ से. तो इस ग्राफ को दोबारा बना लेता हूँ मैं, यहाँ बनाइए दोबारा से, या फिर लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन दिस ओनली. तो मान लीजिए अगर दोबारा नहीं बनाते हैं, इसी ग्राफ में अगर करने की कोशिश करते हैं, तो इफ लेट्स से आई वाज हैविंग अ कट सेट लाइक दिस. ठीक है. और इसका डायरेक्शन मैंने ये चूज किया, तो दिस इज माय कट सेट, इसका डायरेक्शन मैंने ये चूज किया, एंड यू वुड नो दैट इसको रिमूव करने से ये वाली जो नोड है विच वाज द थर्ड, तो इट वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो ये थर्ड वाली नोड अलग हो जाएगी. तो अलग नोड इज इन इटसेल्फ अ ग्राफ, तो हम कहेंगे कि इट हैज इंक्रीज द कंपोनेंट बाय 1. तो अब बताइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कट सेट, this is direction of 2, this is direction of 7, sorry 5. 7 ये है, 5 ये है, so this one is 5, 2 5 और 3. so I have another cut set which is 2 5 and 3. now you specify the sign, so I can see that 2 is following the sign. see, ये इस तरफ आ रहा है, it is coming towards and it is following the sign of this cut set. however 5 and 3 are opposite. देखिए, it is from left to right, but this is from right to left. दिख रहा है ना आपको? This arrow is from right to left, this is from left to right. So that's why 5 or 3 would be having negative sign. Okay, are you getting it? And what about this cut set? Now tell me, if I am having a cut set like 6, 5 and 4, and the direction is this. अब इसके साइंस आपको बताने होंगे, चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट वुड बी द साइन. सो यू कैन टेक इट इन दिस फॉर्म. ओके, तो जरूरी नहीं हम स्ट्रेट लाइन ही लें. तो मैंने एक पोर्शन बना दिया दिस हाफ, दूसरा ये.
तो इसको मैंने बोला पोर्शन लेट्स से ए, इसको बोला पोर्शन बी। अब आपको देखना है एरो इज कमिंग फ्रॉम ए टू बी और इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए। कमिंग फ्रॉम ए टू बी यानी ए टू बी है या बी टू ए है। तो यू वुड सी दैट 6 वाले का बी टू ए है, 5th का भी बी टू ए है, बट 4th का ए टू बी है। और हमारे कट सेट का डायरेक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। अब बताइए इसमें साइंस क्या आने चाहिए? व्हाट शुड बी द साइन? So we will have sign as you are saying already, minus minus plus. So we have -6, -5 and 4. Also you can have, you know, for Khagendra, you can turn off your camera. So also we can have for this, and let's say the direction now is this, from इसको बोलते हैं P region to Q region. This is half. इसको पूरे आधे में बांट दिया, इस फर्स्ट को अलग कर दिया। तो यू हैव एक्चुअली 8, 6 and 1. So 8, 6, 1 in itself is a cut sector. So what about 8, 6 and 1? 8, 6 और 1 के साइंस बताइए, और जबकि कट सेट का साइन ये है, तो हमें देखने का लग रहा है जैसे 8 will be negative, 6 will also be negative and 1 will also be negative. All are coming out, nothing is going in. So all negative. You can have it in this form, no worries. Any doubt? थोड़ा सा अलग होता है ये कट सेट का कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता है, बट आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दीज ग्राफ्स, दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स. Can I move ahead? So we have done Yes, sir. directed loops. We have done directed cut sets. And every directed cut set equation gives you KCL. जैसे I1 minus I5 plus I4 plus I8 equals to 0. ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी आपको. इस वाले की बात करें 2, 5, 3 की, I2 minus I5 minus I3 equals to 0. What about this one? I4 minus I6 minus I5 equals to 0. What about this one? It is I1 plus I6 plus I8 equals to 0. Minus sign common ले लिया. So every directed cut set equation या cut set will give you a KCL equation. तो डायरेक्टेड लूप से KVL आती है, डायरेक्टेड कट सेट से KCL आती है. तो जब KVL और KCL आ गई हमारे पास, तो हम उस सर्किट के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं. इसीलिए इन KCL को हैंडल करने के लिए यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ F सर्किट्स एंड F कट सेट, फंडामेंटल सर्किट्स एंड फंडामेंटल कट सेट विच कॉरेस्पॉन्ड टू द इंडिपेंडेंट लूप्स एंड इंडिपेंडेंट मैशेस. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशंस होती हैं, इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशंस होती हैं. दोज कम फ्रॉम F कट सेट्स एंड F सर्किट्स. तो फंडामेंटल सर्किट्स और फंडामेंटल कट सेट्स कुछ होते हैं. क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे. उससे पहले हमें पढ़ना है कि ट्री क्या होता है, पेड़. ठीक है. तो अभी जो आपको बताया है उसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ट्रीज का, जो जरूरी है फंडामेंटल कट सेट और फंडामेंटल सर्किट्स को पढ़ने के लिए. दैट्स व्हाई. ओके. सो आई एम टर्निंग द पेज नाउ एंड आई एम राइटिंग न्यू डेफिनेशन. वी हैव अनदर टर्म, न्यू फ्रेंड, ट्री. अब ट्री क्या है? तो ट्री इज एक्चुअली a subgraph of a graph. A subgraph of a graph, but not any subgraph. It is a special subgraph such that a tree is a subgraph of a graph such that it follows something. 3 points हैं, पहला, दूसरा, तीसरा. ट्री किसी भी गिवन ग्राफ का एक सब ग्राफ है सच दैट इट हैज ऑल वर्टिसेस. आप वर्टिसेस मिस नहीं कर सकते हैं. सच दैट इट हैज ऑल वर्टिसेस. ओके.
Second, it is connected. नाउ ये कनेक्टेड की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इट मींस दैट आप कोई भी पेयर ऑफ वर्टेक्स लीजिए, उसके बीच में आपको एटलीस्ट वन पाथ मिल जाएगा. एंड द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट हैज नो लूप्स. तो कोई भी ग्राफ उठाइए, उसकी कुछ ब्रांचेस मिसिंग होंगी, यानी कुछ ब्रांच हटा सकते हैं हम, ताकि कोई लूप ना रहे, ग्राफ कनेक्टेड ही रहे और सारी वर्टिसेस प्रेजेंट हो. ठीक है. तो अब आप रिकॉल कीजिए वही वाला डायग्राम जो आपको शुरुआत में मैंने कहा बना लीजिए. ये वाला, इस डायग्राम को देखिए. अब इस डायग्राम का ट्री बनाना चाहते हैं तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबल ट्री. बहुत सारे ट्री अलाउड हैं, पॉसिबल हैं, आप बना सकते हैं. तो मैं एक ट्री बनाने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले तो कहा गया है कि इट शुड हैव ऑल वर्टिसेस. तो सबसे पहला टास्क, सारी वर्टेक्स को ड्रॉ कर लीजिए. इसका एक ट्री बनाना है. बहुत सारे ट्री हो सकते हैं, एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले हम ये सोचते हैं कि ट्री होगा क्या, बनता कैसे है. तो यू टेक इन अकाउंट ऑल द वर्टिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सारी वर्टेक्स ले आइए. वर्टेक्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5th भी है. सारी वर्टिसेस ले आइए, कुछ भी छोड़िए नहीं. ठीक है. नाउ यू स्टार्ट प्लेसिंग एजेस वन बाई वन. तो जैसे मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट वाली एज रख दी, मैंने सेकंड वाली एज भी रख दी. फिर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन 7th एज एंड 6th एज. दैट्स इट. दिस इज अ ट्री. अब देखिए इसमें से कई सारी ब्रांचेस मिसिंग है. 5 वाली नहीं लिखी मैंने, 3rd नहीं लिखी, 4th भी नहीं लिखी और 8th भी नहीं लिखी. तो कई सारी ब्रांचेस मिसिंग है. दिस इज अ ट्री. क्यों? इट इज अ सब ग्राफ. देखिए इस ग्राफ का ही पार्ट है, इस वाले ग्राफ का पार्ट है. इट इज अ सब ग्राफ. इट हैज ऑल द वर्टिसेस. यस, इट हैज ऑल द वर्टिसेस. इट इज कनेक्टेड. देख लीजिए, कहीं से भी कहीं जाने के लिए आपके पास एक ना एक डायरेक्शन तो होगा ही. इट हैज नो लूप. कोई लूप नहीं है, कोई भी लूप नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज अ ट्री. यू कैन ऑल्सो हैव सम अदर ट्री. जैसे एक ट्री ये भी हो सकता है. तो आपने ये नोट कर लिया है? हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes, sir. ओके. Yes, तो sir. एक और ट्री बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला टास्क क्या है ट्री बनाने में? सबसे पहला टास्क है राइट ऑल द वर्टिसेस. दोबारा से मैं सारी वर्टिसेस लिख देता हूँ. आई हैव फर्स्ट, आई हैव सेकंड, आई हैव थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब कुछ एजेस लगानी है ताकि ये कनेक्टेड हो जाए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दिस. दिस इज माय एज 3, this is my edge 7, and then I will have this one which is my edge 6, and then I will have this which is my edge 8. ठीक है. and directions you can specify or you can omit also. तो हम specify कर ही लेते हैं. this is like this, like this, this is like this, and this is like this. Right? So this is another tree. Whether it is a subgraph of this graph, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एज नहीं लगानी है, उसी की एजेस उठानी है. ओके. So there's a phone. So you have all the vertices in it. Yes, you have all the vertices present. You have all the vertices. It is connected and it is having no loops. कोई loop नहीं है इसमें. So it is also a tree. अब बताइए क्या ये एक ट्री होगा? मैं कुछ एग्जांपल्स बना रहा हूँ इसी ग्राफ के लिए, इसी ग्राफ के रिस्पेक्ट में. इसलिए मैंने कहा था कि आप इसे बना लीजिए. I'm repeating that again and again. तो अब मैं कुछ डायग्राम्स बना के बताऊंगा और आप बताइएगा कि whether that is a tree or not. So let me just take in
So this is, let's say किसी भी ग्राफ का है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, लेकिन मैं किसी और ग्राफ के लिए बना रहा हूँ, let's say. So let me say this is first, this is second, this is third, and this is fourth, and this is fifth. और ये कुछ ब्रांचेस हैं, जरूरी नहीं है मतलब हम इसी तरीके से लगाएं कि जैसे एक पैटर्न दिख रहा है उसी पैटर्न में ही लिखें. यू कैन टेक और मिसप्लेस दीज डायरेक्शंस एज वेल, ये आपके ऊपर है. तो वी वर हैविंग 1 और 2 के बीच में देयर वाज अ ब्रांच, वी कॉल दैट एज ब्रांच 1. तो मैंने ब्रांच 1 लिख ली. एंड इन 2 and 3 वी वर हैविंग अ ब्रांच व्हिच इज, आई एम सेइंग दैट दिस इज ब्रांच 2. And in 4th and 5th we were having a branch which is called as branch 4. तो ये मैंने एक नया subgraph बनाया है. You know that this is a subgraph. Yes, this is definitely a subgraph. Is it a tree? It is having No, all sir. the vertices. It is having all the vertices, but it is not connected. That's why it is not a tree. तो तीनों के तीनों जो points है वो follow होने चाहिए. Although it is having all the vertices, no doubt, but it is not connected, therefore it is not a tree. एक और एग्जांपल देखते हैं. Let me draw right here. ये वाला बताइए. This is your second, this is first, this is fourth, and this is third. ये कनेक्टेड दे दिए हैं आपको. तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1 है, 2 और 4 के बीच में वी हैव 7, और सेकंड और थर्ड के बीच में वी हैव 2. इज दिस अ ट्री? इज दिस अ ट्री? हाँ या ना में बताइए. इवन दिस इज नॉट अ ट्री. व्हाई? बिकॉज इट मिसेस H5. कहाँ गई? तो ट्री में कोई भी सॉरी एज नहीं, वर्टेक्स 5 या वर्टिसेस 5. तो ये 5वीं वर्टेक्स तो गायब कर दी, ये पूरा था ही नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्री, बिकॉज एवरी ट्री और व्हाटएवर द ट्री यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ शुड हैव ऑल द वर्टिसेस प्रेजेंट. इसमें ये वर्टेक्स गायब थी, कोई बात नहीं है. ये वाला डायग्राम के ऊपर बताइए, इसके रिस्पेक्ट में बताइए वेदर दिस विल बी अ ट्री और नॉट. whether this is a tree. You have first, you have second, you have 7th, you have I think 4th, and this is 6th. Whether this is a tree? No, this is not a tree. Why? Because in trees loops are not allowed, and it is having a loop. So this is not a tree. This is not a tree. Okay. So given any graph, कोई भी graph दे दिया जाए तो अब आप उसके trees बना सकते हैं. We have to follow certain norms and laws that make all the vertices present, make that graph connected or subgraph connected, and there should not be any loop. Fine. तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला कि ये क्या चीज होती है. And there can be exponential number of trees for any graph. बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे 2 तो मैंने आपको, एक ये वाला और एक उससे पहले बनाकर दिखाया. लाइक where it is, ये this one is a tree, this one is a tree of this graph, sorry, of this graph. ठीक है. So we have 1 minute left in this meeting. Let us reconnect and we will do what is called as branches and what is called as chords. ये definition देंगे, then we will leave for this class. ठीक है. So let us reconnect first.